I will I will be uploading on the YouTube too, so that if anything that is missed by you or that you couldn't understand in the class, so you can go back with the recordings and it will help you to understand the things in more better way. Okay. So as I came to know that we have to start with the chapter that is called perimeter and area. Chapter number 14, Unit 5, the mensuration. So we are just going to start with this perimeter and area today. Anywhere, if you are having any doubt, please ask me, right? Without any hesitation, you just ask me whatever you didn't understand, please let me know at the same time. Now, perimeter and the area. So the first thing that we will discuss is perimeter. My dear, perimeter is defined as, you can say, the length of the boundary. The length of boundary. Whatever the shape we are having, we just take the shape, take the boundary, take the length of the shape, and that gives us the perimeter, right? Redmi Oppo 6PH Chanakya, I request you all, please rename your name. आप प्लीज अपना नाम चेंज करिए, आपके पास ऑप्शन है, आप अपना ओरिजिनल नाम प्लीज पुट करें, ठीक है? ओके, नाउ, so as I was telling you, perimeter means the length of the boundary. For example, if I put a diagram to you, just give me a second. I'm putting a diagram to you all. It will help you to understand. Just give me a second. For example, I'm having these kind of structures, okay? They are asking about. So these are the questions that we are also having with us. We will solve those questions. So first thing that we need to understand about the perimeter, that what is perimeter basically? So perimeter is basically the length of the boundary. Whatever the boundary is there, we will calculate the length. For example, the first figure I'm talking about, this is the point A from where I have started my journey, right? And the dimension is given as 3.5 centimeter, that is 3.5 centimeter. Okay. So it is 3.5 centimeter. It is 3.5 centimeter. It is 3.5 centimeter. It is 3.5 centimeter. So for example, I'm just giving you, this is the shape I'm having, and we are moving from this point A to B, then B to C,
then C to D, and then D to A. So whatever the length we have traveled, जो भी ये लंबाई हमने मेजर करी है, जो भी लंबाई हम चले हैं ना, इसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? दिस इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर। दिस इज नोन एज पेरीमीटर। हिंदी में हम कहते हैं परिमाप। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वी कैन राइट द पेरीमीटर फॉर द गिवन शेप एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। दैट इज गिवन एज द पेरीमीटर, राइट। इसी तरीके से सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, सपोज ए बी एंड सी। सो ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो दैट विल बी द पेरीमीटर। ओके, कोई डाउट है यहां तक हरदीप? बाकी दो बच्चे? नो सर। बाकी दो ये कौन है? नाम इनके जरा बताइए, नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? देखो बेटा, नाम नहीं चेंज करोगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, फिर हम उसको ना, आपको फिर हम मीटिंग से निकाल देंगे। आप मुझे नाम बता दो, मैं खुद रख देता हूँ। चाणक्य, क्या नाम है आपका? सर अभिनव कुमार। अभिनव। ओके, अपो इज अभिनव कुमार। सो मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ, अभिनव कुमार। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज गुड वन। ये जो चाणक्य नाम से है, कौन है बच्चा जिनके पे आप बताइए नाम क्या है आपका? प्लीज टेल मी योर नेम। देखिए बेटा, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। आप एटलीस्ट अनम्यूट होकर नाम बताएं, मैं चेंज कर देता हूँ नाम यहाँ से। चलिए, आपको मैं वेटिंग रूम में डाल देता हूँ, आपको मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है? आर यू गेटिंग माई वॉइस चाणक्य? चलिए, कोई और, इसको मैं वेटिंग रूम में डालता हूँ, क्लास से हटाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो अभिनव, ये समझ में आया पैरामीटर के बारे में? ओके, सो पेरीमीटर इज सिंपली वन थिंग, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं ना, उस पाथ की जो लेंथ है ना, दैट गिव्स अस द पेरीमीटर, राइट? नथिंग एल्स। You can have various example, like we can have the circular, hexagonal, pentagonal, depending upon the shape. But what we will be doing is, we will just add the dimensions of the given, that you will be getting the parameter. Now,
Both of you, this you got it? The perimeter for this square shape is 4a, where a is the side. So in this question, the side is given as 3.5. So 3.5 into 4, that you will be getting 14 centimeter. For this triangle, the perimeter is given as 15 feet. We have to find out the length of the side. So if we see, if this is x feet, it is also x feet, it is also x feet. So x plus x is equal to 15. 3x is equal to 15. So x is equal to 15 by 3, that is 5 feet. You got it? Both of you? Yes, sir. Okay. So let's do Abhinav and Hardeep. Just try to solve question number 3 and tell me what is the answer. Yes, sir. Yes, Abhinav, what we got? Ravikant. Okay, do. Hardeep, have you done? No, sir. Okay, just do this. Just see, just count the number of sides. What are the number of sides? And the total perimeter is given, right? So just divide it. Yes, You sir. will be having your answer. Anyone got? अभिनव आ जाएगा कि नहीं पहले बताओ ईमानदारी से. Sir, no, sir. ओके डोंट वरी. हरदीप तुमसे होगा बच्चा. No, sir. ओके चलो टाइम वेस्ट नहीं करते समझते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 3 में अभिनव और हरदीप मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड कितनी है. 5. Sir, 5, 5. 5. ठीक है. चलो लेट्स एज्यूम लेंथ ऑफ वन साइड is x सेंटीमीटर, x मीटर नॉट सेंटीमीटर बिकॉज इट इज इन मीटर. ठीक है. एक साइड की लेंथ कितनी हमने मान ली हरदीप एंड अभिनव. क्या माना है X हमने? me X centimeter. x X मीटर. centimeter. x मीटर नॉट X meter. सेंटीमीटर. x मीटर. ठीक है अभिनव एंड हरदीप. Yes. ओके. सो Yes, sir. कितनी साइड्स हमारे पास? 5. 5. पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना गिवन है? Sir, 30 meter. 30 मीटर. राइट. ओके. नाउ टेल मी, हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि किसी भी बाउंड्री की जो लेंथ होगी, इसी को जब आप मेजर करेंगे तो क्या देगा ये हमें पेरीमीटर देगा, राइट? Yes, sir. चलो भाई, अगर मैं एक हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पर एक साइड एक्स हो गई, ये भी 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 एक्स हो गई. तो अगर मैं बात करूं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 साइड है इज इक्वल टू 30, क्या मैं गलत हूंगा? No, sir. अभिनव Sir. No, sir. घबराइएगा नहीं, आराम से समझिएगा, बहुत टाइम अपने पास. अपन ने क्या किया? अपन ने इन सारी साइड्स को ऐड किया क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि भाई पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स की लंबाई होती है कुछ, है ना?
पैरामीटर क्या होता है? साइड्स की लंबाई होती है। तो हमने क्या किया, हमने सारे साइड्स को ऐड किया। सो वी कैन राइट 5 टाइम्स x इज इक्वल टू 30। सो x विल बी 30 upon 5. That will be how much? 6 meter. How much it will be? 6 6 meter. meter. Got it? 6 Yes, sir. meter. कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ Yes, sir. इसमें। No, sir. अगर No, डाउट sir. नहीं है, हाँ अभी ना बताओ, कुछ है डाउट? No, sir. ओके, अगर यही बात है तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आप करके दिखाओ। जो सबसे पहले करेगा उसको स्कूल खुलते ही चॉकलेट मिलेगी। करो, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखो। Sir, 32 centimeter. 32 सेंटीमीटर, ओके। ये हरदीप ने बताया कि अभिनव ने बताया? Sir, Hardeep. हरदीप ने, ओके। अभिनव Yes, sir. आया? No, sir. Sir, आ रहा है चलो, थोड़ा। कोई नहीं, कर लो कर लो, अब करो। Okay, Hardeep, do the question number 5 meanwhile. 32. आ गया 32? 32 centimeter. ओके, अभी now how Yes, did sir. we do, how did we do, कैसे किया Yes. हमने? So plus. प्लस, सारी Sir, sides को all plus. sides. Sir, all sides को plus करा दिया था. यस, द टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर हम बात करें यहाँ पे, सो द नंबर ऑफ साइड्स वी आर हैविंग इज 8, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो सिंपली 4 को आप 8 बार ऐड कर दो, या सिंपली 8 इंटू 4, हाउ मच इट इज? 32। गॉट इट? 32 centimeter. चलो Yes. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करो। Yes, 40. Sir, 4 meter. 4 Centimeter. मीटर, ओके। ऑल ऑफ यू गॉट 4 मीटर? Yes, sir. 4 दैट्स centimeter. Yes, sir. 4 centimeter. 4 centimeter, yes. Because the number of sides are 10, right? And yes, sir. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total is 40. So 40 divided by 10, that will be 4 centimeter. Well done. In the same way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48 by 6, that you will be having 8 inch, 8. 8 right? centimeter. Sir, 8 inch. Not centimeter, it is inches. Okay, Abhinav? Okay, Yes, sir. Okay, that's good one. So now this is the thing that we have understood about the parameter, but in our mathematics, there are certain, shapes for which we can have the different formulas. Like we can have the formulas. So I'm just making the shapes first. This is the first shape that we will be having. This could be the second shape. This can be the third shape.
then we can have this shape. This shape, this shape, and various shape we can have. It is up to us how many shape we are looking for. For example, these are the different shape I have taken to understand. So here, if we are looking for the perimeter, my dear, suppose this is what? This is rectangle, right? Rectangle. Yes, sir. As we know, the Yes, rectangle sir. length is represented by L, width is represented by B, right? So B. again, it will be L and it will be B, right? So if I want to calculate the perimeter of a rectangle, so perimeter will be what? The length of the sides L plus B plus L plus B, right? This L, this Yes, B, sir. then this L and this B. So we can figure out it as 2L plus 2B, or a simple formula we can generate 2L plus B. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. This is a mathematical formula for the perimeter of a rectangle. Okay. Now, this is what, my dear? It's a square. Okay. So suppose the side is A, so it will be also A, it will be also A, and it will be also A. So again, here the perimeter should be what? Perimeter will be Sir, side length, that is A plus A plus A plus A. That is how much, my dear? 4A. 4A. Are 4A. we not getting this point? 4A. Getting, समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अभिनव अग्रवाल, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, लेट हो गए तुम। चलो कोशिश करेंगे, समझेंगे, है ना? जहां डाउट होगा पूछेंगे। अभी हम लोग पेरीमीटर पे काम कर रहे हैं बच्चे, और ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल भी दूंगा, तो आपको आसानी से हो जाएगा कि आप दोबारा से भी पढ़ सकते हो। नाउ सपोज इट इज आवर ट्रायंगल। मैं बात करूं इसके नाम के नाम ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो मुझे कोई बताएगा यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? फॉर द ट्रायंगल व्हाट विल बी द पेरीमीटर? अभिनव, हरदीप भाई, पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द साइड, राइट? Yes, होता है कि नहीं, बताओ मुझे। yes, sir. सो लेंथ ऑफ द साइड, तो यहाँ पे लेंथ क्या है मेरे पास? एक साइड की लेंथ ए है, दूसरे की बी है, तीसरे की सी है। सो इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। ठीक। अब इसे में अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल मतलब जहां तीनों साइड इक्वल होती, तो वो 3A हो जाता, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक। नाउ अगर मैं इस फिगर की बात करूं, चलो पहले इसकी बात करते हैं, इस फिगर की। ये रेडियस आर है, दिस इज व्हाट माय डियर? सर्कल, है ना? अच्छा, अब सर्कल में तो साइड नहीं है भाई, अब क्या करें बताओ? सर्कल में साइड तो है नहीं, देन हाउ वी विल गेट द पेरीमीटर? हम कैसे पेरीमीटर पाएंगे, बताइए मुझे, कोई सोच कर बताइए, थिंक। हरदीप, अभिनव कुमार, भाई सोच के बताओ। देखो, समझो, मैं आपको एक हिंट करता हूं। पेरीमीटर की डिफिनेशन हमने क्या पढ़ी? पेरीमीटर की डिफिनेशन हमने पढ़ी कि भाई ऐसा एक स्ट्रक्चर कोई सा भी होगा, उसकी जो बाउंड्री होगी वही क्या होगा? पेरीमीटर होगा, है ना? पेरीमीटर, बाहर बाहर की लंबाई, बाहर बाहर की माप। तो अगर मुझे बाहर बाहर की माप को मेजर करना है, तो सर्कल के केस में मेरे बच्चे, यही तो है हमारा बाहर की माप, यही तो है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही तो है बाहर की माप, है ना? और इसको सर्कल के केस में हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको सर्कल के केस में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? Circle. सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस की फॉर्मूले को दिया जाता है 2πr, वेयर आर इज द रेडियस। आर क्या होता है? रेडियस होता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2πr।
तो मेरे बच्चे, जब भी आपको पेरीमीटर पूछा जाए सर्कल का, तो हमेशा याद रखेंगे सर्कल का पेरीमीटर और कुछ नहीं होता, केवल उसकी सरकमफ्रेंस होती है, दैट इज 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, उस सर्कल की त्रिज्या है। गॉट इट? तो सर्कल के केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इफ द रेडियस इज गिवन, सो वी विल कैलकुलेट द circumference only, and that circumference will give us about the perimeter. अच्छा, ये आपके पास पेंटागन है, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइड्स बराबर है, इट द, है ना, सारी साइड्स बराबर है, इट इज पेंटागन। ओके, यहाँ पे भी वही है कि पेंटागन है, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5x, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 5x। ठीक है। अब वॉट एवर द वैल्यू इज गिवन फॉर द पेंटागन एज अ parameter, so that you can get with the help of this, and the value will be whatever the values are there, so you can get x is equal to that parameter जो आपने निकाला होगा perimeter over number of side, right? In general, or vice versa, we can, like, suppose side is given and we want to calculate the perimeter, तो हमने सिंपल से क्या करी, सारी साइड्स को ऐड कर दिया तो पेरीमीटर मिल गया। और अगर पेरीमीटर गिवन है और हमें साइड्स निकालने हैं तो ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। इन द सेम वे ये हेक्सागन हो गया, 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वट एवर द पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, है ना? जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी आप उसे डिवाइड करेंगे। अब बात आती है ये आपके पास है सेमी सर्कल। नाउ सेमी सर्कल क्या होता है मेरे बच्चे? एक मिड पॉइंट होता है, जैसे ये होगी रेडियस आर, ये होगी रेडियस आर। अब यहां पर अगर मुझे पैरामीटर बताना है, तो देखो दो चीजें ऐड होंगी। एक तो ये वाला हिस्सा ऐड होगा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये जो पूरा हिस्सा है, एक तो ये ऐड होगा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे पाई आर। क्यों पाई आर होगा? क्योंकि जब पूरी सर्किल का सरकमफ्रेंस था 2 पाई आर, तो ये तो आधा है। समझिएगा ध्यान से अभिनव एंड हरदीप, ये जो पोर्शन लिया है ये तो आधा ही है ना। तो अगर पूरे सर्किल का 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, तो आधे का कितना हो जाएगा? पाई आर। होगा कि नहीं, पहले मुझे बताओ। Yes, sir. सर। अभिनव बरनवाल, सॉरी अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, समझो ध्यान से। ये क्या है? ये एक सर्किल का आधा भाग है, आधा हिस्सा है। तो जब एक सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये आधा हो गया तो पाई आर हो गया। अच्छा, लेकिन पाई आर पर कहानी खत्म नहीं होती है, ये जो 2 आर है ये भी ऐड होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटल, आपका क्या कहते हैं, बाउंड्री चाहिए होती है। तो बाउंड्री केवल सर्कल की नहीं है, एक लाइन ये भी लिखी जिसका वैल्यू है 2 आर, दैट इज बेसिकली द डायमीटर। सो द वैल्यू विल बी हियर पाई आर प्लस 2 आर। Okay, so we can take r common, pi plus 2. This will be the circumference for the, semicircle. Please write down this formula in your copy along with the diagram properly. हो गया। Everyone done? यस सर। Yes, sir.
सो यहाँ तक की चीजें समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आज आप क्या करेंगे अपनी एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज जो है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 14A, इनके स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जहां डाउट होगी आप पूछेंगे, जो डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, बट यू पीपल विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू पीपल कैन डू दिस वन, right? They are very easy. Only just try, put one thing in your mind. Perimeter means the length of the boundary. जो भी बाउंड्री है, जैसी भी बाउंड्री है, उसकी लेंथ को ऐड करते चलो, आपका वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, आई विल बी पोस्टिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर सेशन ऑन द यूट्यूब ऑफिशियल पेज ऑफ चाणक्य। तो जहां पर भी कोई डाउट है, या जैसे अभिनव अग्रवाल आपने बाद में ज्वाइन किया है ना, सो आप वहां से एक बार देख लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? और जब तक इस तरह छुट्टियां चल रही है, वी विल बी वर्किंग टिल 15 जनवरी। हम हर दिन 1 या 2 क्लासेस करेंगे, ठीक है? हमारा रूटीन पढ़ने वाला बना रहना चाहिए, ओके? चलो, सो अगेन वंस अगेन एवरीवन गुड बाय, बट प्लीज टेक केयर ऑफ, विंटर इज टू लाइक, ज्यादा विंटर है, ठंड बहुत ज्यादा है, सो प्लीज टेक द यू नो स्वेटर्स, जैकेट्स एंड कैप्स अलोंग विद यू, और साथ में पढ़ाई भी करते रहें अच्छे से, ठीक है? सो लिविंग आवर Yes, सेशन sir. एंड मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून, थैंक यू। Okay, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.